ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجیے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز کو آپ ٹائملی دیکھ لیں۔ میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا تھا کیونکہ یہ میری پسند کی شادی تھی۔ میرے ماں باپ اس پسند کی شادی کے خلاف تھے، لیکن میں نے بہت جدوجہد کے بعد اپنے ماں باپ کو راضی کر ہی لیا تھا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی یہ میری زندگی کا سب سے برا فیصلہ ہوگا، کیونکہ میرا شوہر ساری رات میرے ساتھ، توبہ توبہ، میری جان نکل جاتی تھی، لیکن وہ شخص مجھے نہ چھوڑتا تھا۔ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ ہمارے گھر کے اندر میرے شوہر کا ایک بھائی، اس کی بیوی بھی رہتے تھے۔ دونوں ہی بہت ہنسی خوشی زندگی گزارتے تھے۔ میں اکثر اوقات اپنی دیورانی کو دیکھتی تھی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ کبھی باہر سے آ رہی ہوتی تھی تو کبھی باہر اپنی مرضی کے مطابق جا رہی ہوتی تھی، اور یہی میرے شوہر مجھے گھر سے ایک پل کو نکلنے نہیں دیتے تھے۔ میرا دل بہت روتا تھا، لیکن میں اس بات کو بالکل بھی کسی پر عیاں نہیں ہونے دیتی تھی، کیونکہ ایک اچھی بیوی ہونے کے ناطے مجھے یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن اس کی یہ بے جا پابندیاں مجھے بہت پریشان کر رہی تھی۔ رات کے پہر جب وہ میرے قریب آتے تھے تو میری حالت دوہری کر کے رکھ دیتے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک اچھی ازدواجی زندگی گزار رہے تھے، لیکن روزانہ میرے شوہر کا میرے قریب آنا میری صحت خراب کر چکا تھا۔ میں یہ بات اپنے شوہر کے منہ پر بھی بول نہیں سکتی تھی، کیونکہ مردوں کو ایسی باتیں بالکل بھی پسند نہیں ہوتی ہیں۔ اگر ان کے سامنے ایسی بات کی جائے تو وہ سامنے سے یہی بولتے ہیں، تمہارا تو روز کا ڈرامہ ہے۔ اور اکثر اوقات میں نے اپنے شوہر کو انکار بھی کرنا چاہا تو انہوں نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ ڈرامے نہ کرو، مجھے میرا حق لینے دو۔ میں پھر خاموش جاتی تھی۔ جب بات حق کی آ جاتی ہے تو عورت کو خاموش ہونا ہی پڑتا ہے۔ ایک روز میں اپنی نند کے ساتھ اپنے شوہر کو بنا بتائے بازار چلی گئی تھی۔ میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن میری نند بضد تھی کہ بھابھی میرے ساتھ چلو، کیونکہ مجھے میری پارٹی کے لیے ایک سوٹ لینا ہے۔ میں اس کو سمجھ رہی تھی کہ تم دیورانی کے ساتھ چلی جاؤ، کیونکہ اگر تمہارے بھائی کو بنا بتائے جاؤں گی تو وہ بہت زیادہ غصہ کر جائیں گے۔ میری نند کا یہی حال تھا اور کہنا تھا کہ آپ کی پسند زیادہ اچھی ہے۔ دیورانی کی پسند بھی اچھی تھی، لیکن میرا کپڑے پہننے کا طریقہ سب لوگوں کو ہی پسند آتا تھا۔ اس وجہ سے میں خاموشی کے ساتھ اپنی نند کے ساتھ چلی گئی، کیونکہ میں اپنے سسرال میں بھی اپنی ایک پہچان بنانا چاہتی تھی۔ اگر میں بار بار اپنی نند کو انکار کرتی تو میری بات خراب ہو جاتی۔ میں خاموشی سے اپنی نند کے ساتھ چلی گئی۔ ہم میری نند کے لیے ایک سوٹ لے چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اسے اس کی میچنگ کی جولری اور سینڈلز لینے کی وجہ سے ہمیں بہت دیر ہو گئی تھی۔ میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی اگر میرا شوہر گھر آ چکا ہوگا تو میری خیر نہیں، کیونکہ ان کے بنائے ہوئے اصولوں کے میں نے آج تک نفی نہیں کی تھی۔ انہوں نے مجھے پہلی رات ہی یہ بات سمجھا دی تھی کہ ان کے حکم کو ماننا مجھ پر فرض ہے۔ اگر میں نے ان کے حکم کو نہیں مانا تو وہ میرے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آئیں گے، اور یہی چیز میرے دل میں خوف پیدا کر رہی تھی۔ میں اپنی نند کو بار بار چلنے کے لیے بول رہی تھی، لیکن وہ کوئی اور چیز لینے کے بہانے مجھے مزید دیر کروا رہی تھی۔ ایک پل کو تو مجھے ایسا لگا کہ وہ یہ سب جان کے کر رہی ہے، لیکن میں نے اپنے اس خیال کو چھٹک دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم لوگ بازار سے نکل گئے تھے، لیکن اندھیرا چھا چکا تھا اور میرے دل کی دھڑکن بہت منتشر ہو رہی تھی۔ میں اللہ اللہ کر کے گھر پہنچ چکی تھی۔ راستے میں ایک دو بار گاڑی بھی خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں مزید دیر ہو گئی تھی۔ میں جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو میرے شوہر کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی اور یہی میرے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو چکے تھے۔ میں اللہ کا نام لے کر گھر کے اندر آئی تو لاؤنج کے صوفے پر ہی میرا شوہر اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھے ہوئے غصے کے عالم میں بیٹھا تھا۔ میرا دل بند ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر کو سلام کیا۔ میری آواز سنتے ہی انہوں نے اپنی لال سرخ آنکھوں سے مجھے گھورا تھا اور بنا کوئی بھی جواب دیے بغیر کمرے کے اندر چلے گئے تھے۔ خوف کے مارے میری جان نکلنے کے در پر آ گئی تھی، کیونکہ میں اپنے شوہر کے دماغ سے بہت اچھے سے واقف تھی۔ انہیں پل میں ہی غصہ آتا تھا اور وہ سب کچھ تہس نہس کر دیتے تھے۔ ہم دونوں کی پسند کی شادی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں ان سب سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر مرد ایک بار غصے میں آ جائے تو وہ اپنا آپا کھو دیتا ہے، اور یہی حال میرے شوہر کا بھی تھا۔ مجھے ایک ہی بات کا ڈر لگا رہتا تھا، کہیں یہ غصے کے عالم میں مجھے طلاق نہ دے دے۔ اس وجہ سے میں ہمیشہ ہی اپنے شوہر کا کہا ایک بار میں ہی مان لیتی تھی۔ میں اللہ کا نام لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو وہ غصے کے عالم میں ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ایک ہی سانس کے اندر جاتے ہی
अपनी सारी कहानी की कोशिश कर दूंगी कि मैं नहीं जाना चाहती थी, आपकी बहन ही मुझे जबरदस्ती लेकर गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो आज मेरी एक भी नहीं सुनने वाले थे। मैं कमरे में दाखिल हुई और मैं कुछ कहती इससे पहले ही उन्होंने मेरे दोनों बाजू से पकड़कर मुझे दीवार के साथ लगाया और मेरे मुंह पर गुर्राते हुए कहने लगे, जब मैंने तुम्हें एक बार ये बात समझा दी थी कि तुम मेरी बिना इजाजत घर से बाहर कदम नहीं निकालोगी, तो तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये हरकत करने की? तुम अच्छे से जानती हो मुझे नापसंद है वो औरतें जो अपनी मर्जी चलाती हैं। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना था तो ऐसे ही बोल देती। ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत थी? जबकि मैं अपने शौहर को सख्त निगाहों से देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ऐसी बात कर जाएंगे। मैंने उनकी जानिब देखा और उनको भराई हुई आवाज में कहने लगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझसे ऐसी बात कर सकते हैं। मैंने कब आपकी कोई बात टाली है? आप कहाँ का? मैं एक दफा कहने पर ही सारा कुछ मान जाती हूँ। मैं मानती हूँ कि आज मैंने आपकी नाफरमानी की है और इस वजह भी सिर्फ और सिर्फ आपकी बहन ही है। मैं ये सब कुछ जानकर नहीं कर रही थी। मैं इसको बार बार कह रही थी कि मैं आपके आने से पहले घर आना चाहती हूँ, लेकिन वही मुझे बार बार बाजारों में घुमाई जा रही थी। इसमें मेरी क्या खता है? अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपनी बहन से सारी बातों के बारे में पूछ सकते हैं। मेरे शौहर ये बात सुनकर चुप हो गए और पीछे होकर कमरे से बाहर चले गए। मैं वहीं बैठकर घुटनों में रोती रही। इतने सालों की रियाजत पर उन्होंने पल भर में पानी फेर दिया था। मैंने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया था और आज उन्होंने मुझे ये बोलकर मेरे सब कुछ किए हुए पर पानी फेर दिया था। मैं अपनी जगह से उठी और बिस्तर पर आकर लेट गई। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। बाजार में चलने की वजह से मेरे पाँव में भी बहुत ज्यादा दर्द हो गया था। मैं रोते रोते न जाने किस पहर सो गई, मुझे इल्म ही नहीं हुआ। रात के पहर जब मुझे अपने वजूद पर किसी का वजूद महसूस हुआ तो यकदम ही मेरी आंख खुली। मेरा शौहर मुझे धीरे धीरे प्यार कर रहा था। मेरी सांसें एकदम भारी होना शुरू हो गई थी। मैं उनको हटाते हुए कहने लगी, नहीं, आज मैं बहुत थक गई हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं है। मेरा ये कहना था कि मेरा शौहर मेरी जानिब देखते हुए कहने लगा, ये मेरा मसला नहीं है। बाजार तुम गई थी और अपनी मर्जी से गई थी, मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था। तुम तो जानती हो मैं हर रोज ही तुम्हारे करीब आता हूँ और आज अगर मैं तुम्हारे करीब ना आया तो मुझसे रहा नहीं जाएगा। इसीलिए खामोशी से बर्दाश्त करो। लेकिन मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं थी। मैं बार बार उनको मना कर रही थी कि नहीं, आज रहने दो, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे पाँव टूट जाएंगे। लेकिन वो बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुन रहे थे, बस अपना काम जारी रखे हुए थे। मैं वैसे ही इन सब से बहुत ज्यादा खफा थी। मैंने अचानक ही इनके हाथ को अपने ऊपर से झटक दिया और गुस्से के आलम में इनको देखते हुए कहने लगी, समझ नहीं आ रहा आपको कि मैं क्या बोल रही हूँ? मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। मैं आज आपके साथ ये सब कुछ नहीं कर सकती हूँ। अल्लाह के वास्ते मुझ पर रहम करें, मैं भी इंसान हूँ। मेरा ये कहना था कि मेरे शौहर ने अपने माथे पर आंखें रख ली। गुस्से से उनके दिमाग की रगें फूल चुकी थी, उनकी रंगत पल में सुर्ख हो चुकी थी। ये सब कुछ देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे अब डर लग रहा था, न जाने अब मेरे साथ क्या होगा। अचानक ही उन्होंने मेरी टांगे हवा में उठा ली और अपना मैंने हमेशा ही अपनी जिंदगी ऐसे गुजारनी चाहिए थी जिसमें मुकम्मल आज़ादी हो, मुझे हासिल हो। मेरे माँ बाप भी मुझ पर बहुत पाबंदियां लगाते थे, यहाँ ना जाओ, ये ना करो, ये ना पहनो, इससे बात ना करो। ये सब कुछ मुझे बहुत तकलीफ देता था, लेकिन मैं यही सोचकर चुप हो जाती थी कि शादी के बाद अपनी मर्जी चलाऊंगी, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगी। इस वक्त मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मेरी खाम ख्याली थी। शादी के बाद तो तेरी जिंदगी मेरी पूरी की पूरी बदल गई थी। मैंने ये शादी अपनी पसंद से की थी। मेरे माँ बाप इस शादी के बहुत खिलाफ हुए थे कि नहीं, हम तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद के मुताबिक नहीं करेंगे, लेकिन मेरी जिद के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े थे। लेकिन शादी की पहली रात ही जो मुझ पर अफशा हुआ राज, वो मेरे होश उड़ा गया। मेरे शौहर ने शादी की पहली रात ही मुझ पर यह बात बहुत अच्छे से वाजे कर दी थी कि वो किसी भी सूरत मेरी मर्जी से मुझे चलने नहीं देंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी के मुताबिक ही मुझे चलाएंगे। मेरा दिल ये बातें सुनकर खून के आंसू रोया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि ये मेरा खुद का अपना फैसला था। अगर मैं ये सब कुछ सुनकर अपने घर लौट जाती तो मेरे माँ बाप मुझे ही कसूरवार ठहराते कि तुमने ही इस शख्स को पसंद किया था। अब जब अपनी पूरी जिंदगी इस इंसान के साथ ही गुजारनी थी तो मुझे ये सब बर्दाश्त करना ही था। अपनी मर्जी चलाने की ख्वाहिश मैंने अपने दिल में ही दबा ली थी और इनके अहकाम के मुताबिक चलना शुरू हो चुकी थी। पर यही मेरी सबसे बड़ी खता थी। अगर मैं शुरू में ही अपने हक के लिए बोल लेती तो आज मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। मेरा शौहर जैसे मुझे कहता था, जहाँ जाने के लिए बोलता था, मैं उसके मुताबिक सब कुछ करती थी। रात रात भर वो मेरे वजूद पर हावी रहते थे, लेकिन मैं कुछ नहीं कहती थी क्योंकि वो अपना हक बोलकर मुझसे हासिल करते थे।
मैं खामोश रहती थी, लेकिन बाज़ औक़ात मेरी हालत दोहरी हो जाती थी। मैं उनको रोकने के लिए बोलती थी, लेकिन वो अपना अमल फिर भी जारी रखते थे। दिन भर की थकावट मेरे चेहरे पर अयां होती थी। इसके बावजूद भी मेरे शौहर अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे। इनका रवैया, इनका बात करने का अंदाज मेरे साथ बहुत अच्छा होता था, लेकिन एक इंसान को आज़ादी चाहिए होती है, जो मुझे भी हासिल नहीं थी। आज भी जब मैं अपनी नंद के साथ बिना बताए बाजार चली गई थी और आने के बाद जो उनका रद्द-ए-अमल था, मेरी जान निकाल गया था। आधी रात के पहर जब मुझे अपने वजूद पर किसी का वजूद महसूस हुआ, तो मैंने फौरन आंख खोल ली थी और अपने सामने अपने शौहर को पाया था। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैं बार-बार अपने शौहर को मना कर रही थी कि आज मैं इनका साथ नहीं दे पाऊंगी। मुझ में ताकत और हिम्मत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके हाथ मेरे जिस्म पर बेबाक अंदाज में घूम रहे थे और न जाने मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि मैंने इनका वही हाथ झटक दिया और इनको गुस्से से हटा दिया। और इसी वक्त उन्होंने गुस्से के आलम में अचानक ही अपना हाथ मेरे गले पर ले गए और उसे दबाते हुए कहने लगे, मैंने तुम्हें 1000 बार ये बात समझाई है ना कि तुम मुझे अपने करीब आने के लिए इनकार नहीं करोगी, तो आज क्यों कर रही हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी ज़रूरत है मुझे? इनका गुस्से से बुरा हाल था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके की मोहब्बत मुझसे करते हैं। मैं खुद को उनसे छुड़वाना चाहती थी, लेकिन वो मज़ीद मुझे अज़ियत देते हुए और ऊपर मेरी टाँगों को करना शुरू कर चुके थे। अचानक उन्होंने मेरी टाँगों को नीचे ज़मीन पर फेंक दिया और कमरे से दंदनाते हुए चले गए थे। मुझे हैरत हो रही थी इस शख्स पर, जो मुझसे मोहब्बत का दावेदार था और आज मेरे साथ किस तरीके का रवैया इख्तियार कर चुका था। मैं इस रात घुटनों में मुंह देकर घंटों रोती रही थी। मुझे बेवजह ही रोना आ रहा था। वो रात मेरे लिए किसी अज़ियत से कम नहीं थी। अगली सुबह जब मैं बेदार हुई तो मेरा शौहर नाश्ते की ट्रे थामे मेरे सामने ही खड़ा हुआ था। उन्होंने ट्रे बिस्तर पर रखी और मुझे प्यार से मनाते हुए मुझसे माफ़ी मांगने लगे और मुझे अपने हाथों से ही नाश्ता करवाने लगे और साथ-साथ समझाने भी लगे कि देखो, मेरी बात की नाफरमानी नहीं किया करो। मुझे फिर गुस्सा आ जाता है। मैं जब तुम्हारे करीब आऊँ तो मुझे खुद से ना झटका करो। फिर मैं अपना आपा खो देता हूँ। ये सब बातें मैं जानती थी, लेकिन मुझे आज गुस्सा बहुत आ रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इन्हें छोड़कर अपनी ज़िंदगी से दूर चली जाऊँ, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए मुमकिन नहीं थी। वो मुझे नाश्ता करवा कर और मनाकर काम पर जा चुके थे। मैं कमरे से बाहर आई तो मेरी देवरानी और नंद आपस में महवे गुफ्तगू थी। वो अपनी पार्टी के बारे में बता रही थी, जो मैं भी इन लोगों के करीब जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद ही वो अपने कमरे में चली गई थी। मैं और मेरी देवरानी खाने की तैयारी करने लगे। हम लोग इधर-उधर की बातें करते हुए काम कर रहे थे कि अचानक ही देवरानी मुझे छेड़ने लगी और कहने लगी, आपके तो बहुत मज़े हैं। आपका शौहर तो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। काश कि मेरा शौहर भी मुझसे इतनी मोहब्बत करता। जबकि मैं हैरान होकर उसको देख रही थी। वो मज़ीद कहने लगी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप बारिश में नहाती हैं तो जेठ जी आपको टोकते हैं कि तुम बीमार हो जाओगी, अंदर चलो। मेरे बगैर तुम कहीं नहीं जाओगी। मुझे बताएं, बगैर तुम कहीं भी नहीं जाओगी, क्योंकि मुझे परेशानी लाक हो जाती है। काश सरफराज भी ऐसा करता। उसके अल्फाज में जो हसरत थी, मैं हैरान थी। मेरी देवरानी ये सब कुछ क्या बोल रही थी? मैंने उसकी जानिब देखा और कहने लगी, तुम्हें मालूम है कि ये सब कुछ कितना मुश्किल होता है झेलना, और तुम्हें ये सब कुछ अच्छा लग रहा है? मेरी आवाज़ में दुख का अंसर मौजूद था। मैं आज़ादी की तरसी हुई थी और मेरी देवरानी के पास वो सब कुछ हासिल था जो मैं चाहती थी। वो कहने लगी, क्या भाभी आपको इसको झेलना कहती हैं? लोग तो ऐसी लाइफ के बारे में दुआएं मांगते हैं। मैंने तो कितना चाहता कि मेरा शौहर मेरे आगे पीछे घूमे, मुझे अपने साथ साथ रखे, जहां मैं जाऊं मेरे साथ जाए, वहां मैं उनके साथ वहां रहूं, मुझे प्यार करे, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाए, मुझे मनाए। लेकिन सरफराज, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं करता, बस अपने आप में ही जिंदगी गुजार देता है। ये सब कुछ एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो हमेशा ही अपने शौहर का प्यार और तवज्जो चाहती है, लेकिन ऐसा प्यार और तवज्जो सिर्फ आपको ही मुयस्सर है, और हमें तो ऐसा कुछ भी मुयस्सर नहीं है। उसकी कई बातें सुनकर मैं तमस्खर से हंसी और उसकी जानिब देखते हुए कहने लगी, तुम तो पागल हो जो तुम्हें ये सब कुछ अच्छा लगता है। मुझसे पूछो कि ये मैं किस तरीके से सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ। मैं मानती हूँ तुम्हारा भाई एक आइडियल शौहर है, लेकिन इनमें ऐसी खराबियां हैं मौजूद जो एक औरत को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपनी मर्जी के मुताबिक नहा भी नहीं सकती। मुझे बारिश बेहद पसंद है। याद है ना तुम्हें वो पल जब मैं खामोशी से बरामदे में बारिश के मजे ले रही थी कि अचानक ही तुम्हारे जेठ आ गए थे और मुझे डांट कर अंदर ले गए थे कि तुम बीमार हो जाओगी। मैं जानती हूँ कि मैं बीमार हो जाऊंगी, लेकिन मेरी कुछ ख्वाहिशात हैं जिसको मैं पूरा करना चाहती हूँ। शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपनी मर्जी के मुताबिक नहाती थी, बारिश के मजे लेती थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे जेठ को ये सब कुछ पसंद नहीं है। मैंने बचपन से ख्वाब देखे थे कि मैं शादी के बाद अपनी मर्जी चलाऊंगी,
दोस्तों से मुलाकात करूंगी, पार्टीज करूंगी, शॉपिंग पर जाऊंगी, लेकिन मुझे ये सब कुछ मैसर नहीं है। तुम्हारे जेठ का कहना है जहां भी जाना है मेरे साथ जाओ, जो करना है मेरे साथ करो। तुम जानती हो मैं वो 2 साल से अपनी बहन सगी के घर नहीं गई हूँ, क्योंकि तुम्हारे जेठ को मेरी बहन का शौहर पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अकेले तो भेज दूं, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा। मैं जानती हूँ वो ये सब कुछ जान कर करते हैं, क्योंकि वो मुझे खुद की निगाहों से दूर नहीं करना चाहते। तुम जानती हो इस अजियत को जब 2 साल तक एक बहन अपनी सगी बहन से ना मिले तो कैसा महसूस होता है। मेरी देवरानी ये सारी बातें बहुत गौर से सुन रही थी, और मैं चाहती थी कि उसे एहसास हो कि मैं किस अजियत से गुजरती हूँ, ताकि वो ऐसी जिंदगी की दुआ ना मांगे। मैं मजीद बोली, मैं अपनी सबसे आज़ादी कीमती खो चुकी हूँ। मैं मानती हूँ कि तुम्हारा जेठ मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत। मैं तो तुम्हें हसरत भरी निगाहों से देखती हूँ कि तुम्हारा शौहर कितना अच्छा है, तुम्हें हर चीज की आज़ादी दी हुई है, तो अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं भी जा सकती हो, अपनी माँ के सर घर घंटों रहकर आ सकती हो, तुम्हें कोई नहीं टोकता। और यही मैं अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी के माँ के घर भी नहीं जा सकती। मेरी देवरानी मुश्किल खामोश हो गई थी, जो अभी बार बार ये बात बोलकर मुझे अजियत दे रही थी कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है, आपका शौहर बहुत अच्छा है। अब वो बिल्कुल चुप हो गई थी और उसकी आंखें भी झुक चुकी थी। मैं उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे अंदर जो इतने सालों से लावा भरा हुआ था वो बेख्तियार ही उसके सामने फूट गया था। वो मेरी जानिब देखते हुए कहने लगी, भाभी मैं नहीं जानती थी कि आप किस अजियत से गुजर रही हैं। मुझे आपकी इस तकलीफ पर बहुत अफसोस है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सरफराज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो एक बहुत खुले दिमाग का शख्स है। वो मुझे पूरी आज़ादी दी हुई है। मैं अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं भी जा सकती हूँ, अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी कर सकती हूँ। और आपको पता है, मैं आपको देखकर हसरत करती थी कि काश मेरा शौहर भी आपके शौहर जैसा होता। वो भी मुझ पर ऐसे ही निगरानी रखता, मुझको ऐसे ही प्यार करता। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सरफराज ऐसा नहीं है। मैं इसकी बात सुनकर धीमा सा मुस्कुराई थी और उसको दुआ देकर उठ गई थी कि अल्लाह ताला सरफराज को हमेशा ऐसा ही रखे। लेकिन मेरा दिल मुकम्मल तौर पर बुझ चुका था। रात का वो वाकया मेरे जहन के पर्दों पर बार बार लहरा रहा था, जब मेरा शौहर मुझसे बदसलूकी कर रहा था। मेरा जरा सा इनकार करने पर वो जानवर बन गया था। मेरा एकदम से ही दिल सब चीजों से चाट हो गया था और मैं अपने कमरे में आ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे दिमाग में बार बार मनफी ख्यालात आ रहे थे, क्योंकि ना मैं अपनी माँ के घर चली जाऊं। और यकदम ही मैं अपनी जगह से उठी और अपना सामान बांधकर घर से निकलने लगी। मेरी देवरानी मुझे ऐसा करते हुए देखकर एकदम ही परेशान हो गई और मेरे सामने मेरे रास्ते में हायल हो गई थी। कहने लगी कि नहीं नहीं भाभी, आप वो ऐसा नहीं कर सकती। क्या हो गया है आपको? आप इतनी बड़ी बात नहीं है, आप भाई से बैठकर इस मसले को हल कर लिएगा। क्यों घर छोड़कर जा रही हैं? लेकिन मैंने आज किसी की नहीं सुनी थी और अपना सामान लेकर अपनी माँ के घर आ गई थी। घर आने के बाद जब मेरी माँ ने मेरी सारी रुदात सुनी तो वो बिल्कुल खामोश हो गई और उन्होंने मुझे कोई कसूरवार नहीं ठहराया था। ये सब कुछ मेरे दिमाग का फतूर था कि अगर मैं अपनी माँ के घर जाऊंगी तो वो मुझे गलत बोलेंगी। उन्होंने मुझे सब कुछ तहम्मुल मिजाजी से यही बात समझाई थी कि आने दो तुम्हारे शौहर को, हम उसे बैठकर इस बारे में बात करते हैं। मुझे अपने घर वालों से इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि वो लोग मेरा साथ देंगे, लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिया था। रात को जब मेरे शौहर मुझसे माफी मांगने के लिए मुझे लेने के लिए आए थे, तब मेरी माँ ने उन्हें बहुत खड़ी खोटी सुनाकर उनके साथ मुझे रुखसत नहीं किया था और इस पर यह बात वाज़ेह कर दी थी कि इनकी बेटी कोई लावारिस नहीं है, इसके वारिस अभी जिंदा है। हर बेटी को चाहिए कि कोई मसला भी हो ससुराल में उसके तो अपने माँ बाप को जरूर बताएं। इनसे इस बात को लेकर न डरे कि वो साथ देंगे, वो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। माँ बाप कभी भी अपनी बेटियों को ऐसे नहीं छोड़ते, क्योंकि बेटा हो या बेटी, हर एक ही इनके वजूद का हिस्सा होते हैं। अब ये बात मेरे शौहर को भी समझ आ गई है कि मैं लावारिस नहीं हूँ। उसने मेरे वालिदैन से वादा किया है कि मुझ पर बेजा पाबंदियां नहीं लगाएगा। सरफराज भाई ने भी अपने भाई को बहुत समझाया कि औरत प्यार की भूखी जरूर होती है। अगर हद से ज्यादा प्यार दिया जाए तो उसे भी घुटन का एहसास होता है, क्योंकि वो भी जीती जागती इंसान है, उसे भी तकलीफ होती है। औरत के साथ हमारा दीन भी नरमी का दर्ज देता है। तुम्हें चाहिए अपना घर बचाओ, ना कि छोटी छोटी बातों पर अपनी शरीके हयात को ही जलील करो। मेरे शौहर शर्मिंदा से भाई की बातें सुन रहे थे। सरफराज भाई ने मुझसे भी कहा कि अपने मसाइल घर पर हल कर लिया करें, वालिदैन को ना परेशान किया करें। कमरे में जाते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था, न जाने मेरे शौहर मेरे साथ बंद करने में कैसा सलूक करेंगे, क्योंकि बहादुरी दिखाकर मैं मैके तो गई थी अपने शौहर से मेरा सामना करने का जो सलूक होता, मगर मेरे पास मेरे शौहर के देने के लिए एक अच्छी खबर थी। शायद ये सुनकर वो मुझ पर सख्ती ना करता। शौहर अंदर दाखिल हुआ तो मैंने महसूस किया वो बीमार कमजोर लग रहा था। यही ऐसा लगता था कि कई दिनों से नहीं सोया हो। उसकी शेप भी बढ़ी हुई थी। वो अंदर आती है मेरे सामने बैठकर रोने लगा। मैंने कभी भी उसे इस तरह रोते हुए नहीं देखा था।
اسی لیے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اور میں نے اس سے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگا کہ ان 4 دنوں میں مجھے احساس ہو گیا کہ میں تمہارے بنا بالکل بھی نہیں رہ سکتا ہوں۔ کمرے کی طرح ہی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی ہر چیز۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ اس کی باتیں سن کر میں بہت شرمندہ ہوئی اور میں نے اس سے کہا کہ ابھی مجھے معاف کر دے، میں نے غلط قدم اٹھائے۔ آپ کو بتائے بغیر تم اپنے میکے چلی گئی تھی اور اس کی شکایت لگائی۔ میں نے اپنے شوہر کو خوشخبری دی کہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ سن کر وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا، اب تمہارا اور خیال رکھوں گا تاکہ تم مجھے اتنی بڑی خوشی دے